أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 2 میں آج ہم صفحہ 4 کا اشارہ نمبر سی پڑھیں گے۔ الحمدللہ ہمارا صفحہ 4 تک ہم پہنچ چکے ہیں اور ابھی ہم اشارہ اس کا سی پڑھیں گے۔ آپ لوگ مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں نے اس پچھلے سبق کو ریوائز کیا آپ نے جو ہم نے کیا تھا، اور ساتھ ساتھ اس کو ریوائز کیا کریں اور گوگل ہوم ورک اور ورک بک ساتھ ساتھ کیا کریں تاکہ ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے اور ساتھ ساتھ آپ کا کام کمپلیٹ ہوتا چلے۔ الحمدللہ ہم اس کورس میں 5 صفحات کو پڑھ رہے ہیں گرامر کے ساتھ۔ اس میں جو بات ہے اس میں ہدایت کی بات ہے، متقین کے بارے میں، کافرین کے بارے میں، منافقین کے بارے میں، اور دعوت قرآن ہے اس میں، اور حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان تھے اس کو ہدایت کی بات ہے ان 5 صفحات میں ہم جو پڑھ رہے ہیں۔ ہم 5 صفحات کے اشارات کو دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم اپنی انگلیوں کو رکھتے ہیں۔ پہلا سب سے پہلے جو تھم ہے وہ پیج نمبر 1 ہے، پھر 2 اور 3 ہے، پھر 4 اور 5 ہے۔ تو انگلیوں کے اوپر ہم اشارات کو رکھتے ہیں اور اس کو ہم ایسے اس کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا تھم ہے، اس کے اوپر ہے اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ دوسرے پیج کے اشارے ہیں کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دونوں کو۔ اس کے بعد ہے تیسرا صفحہ، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ چلیے اس کو آپ لوگوں میں سے کون کرنا چاہے گا؟ مس سائمہ اس کو ریوائز کیجئے اشارات کو انمیوٹ کر کے۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ سائمہ بیٹا آپ شروع سے کریں، اللہ کی تعریف یہاں سے تھم سے آپ نے سارے کرنے، تینوں پیج کے اشارے آپ نے دہرانے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دونوں۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ پھر اس کو دہرائیے شارٹ اشارے۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی، دورخے، آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ اچھا یہ 3 پیج ہم پڑھ چکے ہیں، ان 3 کے اشارے 3 پیج کے اور دہرا رہی تھی۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں ہمارا چوتھا صفحہ۔ چوتھے صفحے کے جو اشارے ہیں وہ ہے وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون اور کفر کیسے۔ چوتھے صفحے میں ہم وعید و بشارت پڑھ چکے ہیں اور مچھر کی مثال ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے گمراہ کون۔ تو چوتھے صفحے کے اشارے دیکھ لیتے ہیں، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ وعید، مچھر، گمراہ اور کفر، یہ ہمارے چوتھے صفحے کے مختصر اشارات۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تیسرا جو اشارہ ہے وہ جو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ کیا ہے، وہ ہے گمراہ کون۔ ٹھیک ہے، تو پچھلی آیتوں کے ساتھ اس کا تعلق، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس قرآن سے فاسقین کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اب یہاں ان فاسقین کی صفات بیان کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور صفات جو ہے، صفات کا مطلب جو عربی میں صفات کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی اچھی باتیں بھی اور بری باتیں بھی۔ ٹھیک ہے، ان کے ہم تو اپنی اردو زبان میں صفات اچھی باتوں کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں اس کی جو بھی ہوتی ہیں اچھی بری سب کو صفات ہی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر منافقین
और जो फास्किन की बात हो रही है, अब वो फास्किन की बात हो रही है, वो कैसे थे, वो क्या करते थे, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस बात ये कि फास्किन को कुरान से हिदायत नहीं मिलेगी। क्यों? कि वो सब अल्लाह से किए हुए अहद को तोड़ते हैं, ठीक है, रिश्तों और ताल्लुकात को तोड़ते हैं, जमीन में फसाद फैलाते हैं। ये जो फास्किन है ये सब करते थे। अब हम देखते हैं कि आज जो आज की हमने आयत पढ़नी है, इसमें हमारे पास पहली लाइन में 4 अल्फाज है न्यू, और दूसरी और तीसरी में सिर्फ एक अल्फाज है जो न्यू है, बाकी सब वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। कुरान इतना आसान है कि हमें हर लाइन में 3 या इससे भी कम अल्फाज सीखना है, और आसानी से याद रखने के लिए हम फिक्रों को इस्तेमाल करते हैं। कुरान सीखने के लिए 2 किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, अल्फाज के मायने और ग्रामर। अल्फाज के मायने सीखने और हम कैसे सीखते हैं, इशारों से और फिक्रों से। और ग्रामर सीखने के लिए हम टीपीआई का इस्तेमाल करते हैं, और साथ अरबी बोलचाल का इस्तेमाल से हम टीपीआई सीखते हैं। तो सबसे पहले हम तलावत तर्जमा करेंगे, उसके बाद हम लफ्ज़ी तर्जमा या फिक्र तर्जमा करेंगे। सबसे पहले हम तलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन بعده ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون। वो लोग जो तोड़ते हैं अल्लाह के अहद को, उसको मजबूत करने के बाद, और वो काटते हैं जो अल्लाह ने हुक्म दिया इसका कि इसे मिलाया जाए, और वो फसाद करते हैं जमीन में, वही लोग हैं वो नुकसान उठाने वाले हैं। वर्ड बाय वर्ड तर्जमा हम इसका देखते हैं। अल्लाजीना, अल्लाजीना वो लोग जो, जमा का लफ्ज है, इसकी जो वाहिद है वो अल्लाजी है, अल्लाजी की जमा अल्लाजीना, वो लोग जो यनकुजूना, यनकुजूना तोड़ते हैं। अच्छा, यनकुजूना क्या है, बता सकते हैं आपके ये कौन सा फेल है, माजी का है या मुजारे का है? बता सकती हैं मिस साइमा, मिस रुबाब, आप या कोई और? ये यनकुजूना ये मुजारे का वर्ड है, ठीक है, या लामत मुजारे है। तो यनकुजूना इसका मतलब होता है तोड़ते हैं, जमा का वर्ड है। अहदल्लाह, अल्लाह के अहद को, अहदा अहद कहते हैं, उर्दू में भी अहद कहते हैं, ठीक है, अल्लाह के अहद को मिन बाद ही मिसाके, यानी मिन का मतलब है से, बाद का मतलब अरबी में भी बाद होता है और उर्दू में भी बाद होता है। मिसाके ही, इसको मजबूत करना, यानी कि मिसाके ही का मतलब होता है मिसाक, मजबूत करना, ठीक है, और ही उसे, ये 2 टुकड़े हैं, मिसाके ही उसको मजबूत करना, ठीक है, उसको मजबूत करने के बाद वो लोग जो तोड़ते हैं अल्लाह के अहद को, उसको मजबूत करने के बाद वयक्ताउना, वा हरफ है, इसका मतलब कि ये भी बात जो है हमारी चल रही है, कंटिन्यू है। यक्ताउना काटते हैं, वो काटते हैं, यक्ताउना काता, यक्ताउ काता, यक्ताउ वो काटते हैं, ये यक्ताउ का जमा है, यक्ताउना वो काटते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कता और मल्टीप्लाई किया है वसल से, यानी इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट, यानी कि इसका रास का मतलब है कि इसका अपोजिट होता है, ठीक है, तो इसका अपोजिट वसल होता है, वसल का मतलब होता है मिलाना, कता का मतलब होता है कता करना, काटना, तो वो काटते हैं मा अमर अल्लाह, जो अल्लाह ने हुक्म दिया, माँ यहाँ पर माँ का मतलब है जो, अमर अल्लाहू, हमारा उसने हुक्म दिया, आगे अल्लाह है, अल्लाह के पेश है तो ये फाइल है, तो ये बन गया अमर अल्लाहू, अल्लाह ने हुक्म दिया, जो अल्लाह ने हुक्म दिया या जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया उसको वो काटते हैं, ही उसका, अन युसलू, अब क्या हुक्म दिया, अन ये, युसलू मिलाया जाए, अन युसलू के उसे मिलाया जाए, इन उन लोगों की बात हो रही है जो
اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کو مضبوط کرنے کے بعد، اور کاٹتے ہیں یا قطع کر دیتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا اس کا، یعنی جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کو وہ کاٹ دیتے ہیں، کاٹتے ہیں، قطع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کیا حکم دیا کہ اسے ملایا جائے۔ وَيُفْسِدُونَ، اور یفسدون وہ فساد کرتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ وہ فساد کرتے ہیں۔ یفسدون مضارع ہے اور مضارع جمع ہے، یفسدون وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فی کا مطلب ہے میں، اور ارض زمین، وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو عہد کو توڑتے ہیں، اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو مضبوط کرنے کے بعد، اور وہ کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا جس کا کہ اسے ملایا جائے، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں۔ اولئک هم الخاسرون، اولئک کیا ہے؟ وہی لوگ ان کی بات ہو رہی ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ جمع ہے، اولئک وہی لوگ کیا ہے؟ هم الخاسرون، ہم کیا مطلب وہ سب کیا ہے؟ الخاسرون، جوڑ کے پڑھیں گے تو هم الخاسرون، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الخاسرون خاسر کی جمع ہے، یعنی اسم فائل ہے خاسر، اس کی جمع ہے خاسرون، خاسرون وہ یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جیسے عربی میں ایک ہے نا، ان اللہ لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ تو خسارہ کون سا خسارہ؟ جس میں سارا جمع پونجی بھی چلی جائے، ایسا خسارہ کہ جو اس میں انویسٹ کیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اس طرح کا خسارہ، وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ شرط دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عہد سے مراد اللہ کا حکم ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کی اطاعت کی جائے۔ یہاں اس عہد کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی روحوں کو اکٹھا کیا تھا اور یہ عہد لیا تھا۔ تو جب ابھی دنیا نہیں بنی تھی، ابھی کوئی بھی پیدا نہیں ہوا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان ساری روحوں کو اکٹھا کیا جن کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے تھے، اور ان سب کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، کیا پوچھا؟ جس کو ہم کہتے ہیں عہد الست کہتے ہیں۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے مل کے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ اس کی مراد یہ ہے کہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ نے عہد لیا تھا، کیونکہ اللہ نے عہد تو ہم سب سے لیا ہوا ہے، اور اب ہم سب کیا کرتے ہیں؟ ہم اس عہد کے خلاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی انسان قرآن و حدیث کی بات کو سن کر یہ محسوس کرے دل میں کہ یہ بات سچ ہے، تو یہ اس عہد کا اثر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ حق جاننے کے بعد ٹھکرانا اصل میں اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو توڑنا ہے۔ قیامت کے دن اللہ بتا دے گا کہ کب کس انسان نے حق بات کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کیا۔ اللہ کے عہد کو توڑنے کے علاوہ وہ خاندان کے تعلقات کو برقرار رکھنے کا بھی خیال نہیں رکھتے تھے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا، جس نے اس کو پیدا کیا، یا اپنے قریب ترین رشتہ داروں کا جو اس کی پرورش میں حصہ دار رہے ہوں، اس کا بھی خیال نہیں رکھتا، تو اس کی باتیں اور اس کے کام اسے فساد کی طرف لے جائیں گے۔ جو رشتہ دار ہیں، رشتہ داریاں تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، قرآن پاک میں بھی سارے رشتہ داروں کے نام ہیں، جیسے جو چاچا ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، سب نام اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، سب رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان رشتوں کے ساتھ تعلقات ہی نہیں رکھتے، رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری ان کے ساتھ بنتی نہیں ہے، تو ہم بولتے نہیں، حالانکہ یہ رشتے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو ہم کون ہوتے ہیں رشتہ داروں کے تعلقات کو توڑنے والے؟ تو ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلقات رکھنا چاہیے، اور آپس میں تعلقات کو برقرار رکھنا چاہیے، تاکہ ہم ہدایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں اور ناکامی سے بچ سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ قاتل، کہ جو کاتے ہیں، جو کاٹنے والے ہیں، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ فاسقین نقصان اٹھانے والے ہیں، ان کو دل اور دماغ
کا حقیقی سکون نہیں ملے گا، رشتے داروں کو اور دوسرے انسانوں کی محبت نہیں ملے گی، اور سب سے اہم یہ کہ وہ جنت کی ہمیشہ کی خوشی سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اس کو ہم اتفاق پڑھ لیں، آپ لوگ مس سائمہ پڑھیں گی آپ اس کو؟ چلیے میں آپ کو دیکھ لیتی ہوں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، الذین یہ پڑھیے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یفصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کو مضبوط کرنے کے بعد، اور وہ کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا اس کا کہ اسے ملایا جائے، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، وہی لوگ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دیکھتے ہیں، وہ لوگ اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں اس سے پختہ اقرار کرنے کے بعد، اور اس کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ اسے جوڑے رکھیں، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اسباب دعا اور پلان دیکھتے ہیں۔ اسباب کیا ہے کہ فاسقین کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ وہ سب اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، رشتوں اور تعلقات کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اب اس کی ہم دعا دیکھتے ہیں۔ اے اللہ، زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں تیری اطاعت کرنے کی توفیق دے، رشتہ داری کو برقرار رکھنے میں ہماری مدد فرما، ہمیں اصلاح کرنے والا بنا، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اور ہم پلان دیکھیں گے، پلان ہم بنائیں گے کہ انشاءاللہ تعالی میں اپنے رشتہ داروں سے محبت و احترام کے ساتھ پیش آنے اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں ایک سوشل ورکر یعنی عام انسانوں کی خدمت کرنے والی بنوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اسما اور افعال دیکھتے ہیں۔ اسما کیا ہے؟ عہد، عہد کی جمع ہے عہود، میثاق، میثاق کی جمع ہے مواثیق، عرض، عرض زمین، زمین جیسے اس کو کہتے ہیں، اراضی، ٹھیک ہے، اراضی، خاسر کی جمع ہے خاسرون، خاسرین، کیونکہ خاسر، خاسر کے اوپر دو پیش دو زبر کی تنوین نہیں ہے، اس لیے اس کی جمع دونوں ہی بنے گی، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے اوپر دو پیش کی تنوین ہوتی تو صرف خاسرون جمع آتی، اگر دو زیر کی ہوتی تو خاسرین جمع ہوتی، چونکہ اب دونوں نہیں ہے تو اس کے اوپر اس کے دونوں ہی جمع بنے۔ چلیے اس کو دوہرا لیجئے، پڑھ لیجئے۔ مسائمہ آپ پڑھیں۔ مس رباب آپ انمیوٹ کریں اگر آپ کا انمیوٹ ہو رہا ہے۔ جی جی آواز کم آ رہی ہے۔ میم یہ پورا پڑھنا ہے اوپر والا؟ نہیں، آپ نے صرف اس کے عہد اور عہود یہ پڑھے جو نیچے صرف اس کی واحد جمع تھی۔ عہد، عہد، عہود، میثاق، مواثیق، ارض، اراضی، خاسر، خاسرون، خاسرین۔ ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اسم کیا ہے، اس کے افعال، تین حروف والے صحت مند افعال۔ اس میں ہے، سب سے پہلے ہے ناقضہ، ناقضہ ینقض انقض، ناقض منقوض نقض، اس کا مطلب ہوتا ہے ناقضہ توڑنا، اس نے توڑا، ناقضہ اس نے توڑا، ٹھیک ہے۔ یہ ناسرہ کے باب سے ہے، اس کے جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے نون، قاف اور ضاد۔ چلیے قاطع کا آپ پڑھیے مس سائمہ پڑھیں۔ جی مس، چلیے قاطع یقطع، اقطع، قاطعون، مقطوعون، قاطعون۔ یہ فاتحہ کے باب سے ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے قاف، طا اور عین۔
चलिए आमरा का पढ़िए आप। फा का जी पढ़िए, क्या हो गया? अमरा या मुर, आमिर, मामूर, अमरुन। इसका रूट वर्ड है हमजा मीम रा, इसका बात है नासरा। उसके बाद है सामिया के पैटर्न पे, खासिरा यखसरु, इखसर, खासिर डैश खुस या खुसरान। खा सीन और रा इसका रूट वर्ड है और ये सामिया के पैटर्न पर। अब हमारे पास है तीन हरूफ वाले कमजोर अल्फाज, वहाबा, वादा, काना और काना की पैटर्न वाले। ये हमारे पास है वसला या सिलू, सिल, वासिल, मौसूल, वसूल। ये है हमारे पास ज़ाराबा के पैटर्न पर है और इसका कोड है वाई। ठीक है, और इसका रूट वर्ड है वाव, सौद और ला। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान पाठ कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं अपने ग्रामर पार्ट की तरफ और देखते हैं ग्रामर पार्ट में आज हम पढ़ेंगे, कोर्स टूल में ग्रामर पाल का अयादा करेंगे। सफा नंबर 4 है इशारा सी। तो इसके ऊपर जो आने वाले इस सबक में हम नासारा और ज़ाराबा के स्टाइल पर आने वाले अफाल का अयादा करेंगे। हम सही अफाल पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा फातहा, नासारा, ज़ाराबा और सामिया। ये हमने क्यूसी 1 में पढ़ा था। ठीक है, और अब हम इन्हीं पैटर्न के ऊपर कमजोर अफाल सीख रहे हैं। कमजोर अफाल वो होते हैं जिसमें कोई कमजोर हरफ हो। ठीक है, जैसे वाव, अलीफ और या, ये तीन कमजोर हरूफ हैं। किसी भी फेल में ये कमजोर हरूफ आ जाए, शुरू में, दरमियान में या आखिर में, तो वो कमजोर फेल हो जाएगा, कमजोर फेल कहलाएगा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था वाहाबा के वाहाबा, इसमें कमजोर हर्फ वाव है। तो वाहाबा जो था ये फातहा के पैटर्न पे आया था, और उसके बाद वादा जो ज़ाराबा के पैटर्न पे आया। और फिर हमने पढ़ा काला, जो काला में क्या है, जो कमजोर हरूफ है वो बीच में है, वो नासरा के पैटर्न पर है। और ज्यादा में कमजोर हरूफ जो है वो दरमियान में है, वो ज़ाराबा के पैटर्न पर। इसी तरीके से फिर हमने पढ़ा दाआ और हदा। दाआ में कमजोर हरफ आखिर में है और नासरा के पैटर्न पर है, और हदा में कमजोर हरफ आखिर में है और वो ज़ाराबा के पैटर्न पर। फिर हमने पढ़ा डबल हरूफ वाले अफाल, जिसके रूट वर्ड में डबल हरूफ आता था, वो हमने पढ़ा जन्ना और जल्ला। इन दोनों में ही जो है डबल हरूफ आते हैं। ठीक है, जन्ना में जौत नून नून और जल्ला में जौत लाम लाम, दोनों में डबल हरूफ आते हैं। तो इसलिए हमने अब ये जो हमने मास्टर टेबल ये पढ़ा, हमने इसी को फिर कोड बनाया। अब इसके फतहा के पैटर्न पे आने वाले जितने भी अफाल होंगे उसका कोड होगा वाह एंड हा, वाह हा, उसको कोड होगा। ठीक है, इसलिए कि नासारा के बाप पे आने वाले जितने भी अगर हम और पढ़े हमने, जैसे हमने काला के पैटर्न पे पढ़ा था ताबा। ठीक है, और हमने दा का पैटर्न पे पढ़ा था दा खला। ठीक है, तो ये जैसे दा के पैटर्न में हमने पढ़ा खला, तो इसका खला का जो होगा कोड वो दा एन होगा। ठीक है, और काला के पैटर्न में हमने पढ़ा था ताबा। अब ताबा का जो कोड होगा वो काफ अलिफ होगा। इसी तरीके से हमने वादा के पे पैटर्न पढ़ा था, वाजादा पढ़ा था। ठीक है, फिर ज्यादा पढ़ा था, ज्यादा के पैटर्न पे कादा पढ़ा था। फिर हदा के पैटर्न पे हमने जजा पढ़ा था। लेकिन ये वो सारे जितने भी हमने इसके अलावा भी जितने भी पढ़े हैं, वो सब के सबका जो कोड बनेगा तो वो यही वाला हमारा जो पैटर्न है यही बनेगा, यही चार्ट हमारा जो है कोड के तौर पे काम। अच्छा, अब देखें कि फातहा के जो हमने पढ़े थे सेहतमंद हरूफ पढ़े थे, वो सेहतमंद अफाल जो हमने पढ़े थे उसी बार में, वो 9000 बार, और 9000 बार ही कमजोर अफाल कुरान पाक में आए हैं। 1300 बार
डबल रूप वाले जो है 1300 बार आए हैं, ठीक है। इसमें जो 1300 बार कुरान पाक में तकरीबन हर सतर में एक, जैसे सेहतमंद अफाल हर सतर में एक आया, कमजोर अफाल जो है वो भी हर सतर में एक आया, और जो मुकर्रर है, मुकर्रर अफाल जैसे डबल अफाल जिसको हम कहते हैं, वो एक सफे पे 2 दफा आया, ठीक है, पर सफा के हिसाब से। अब हमने ये पूरा हमारा चार्ट है, इसको हमने याद रखने के लिए हमने सेहतमंद अफाल की एक पोइम याद की थी, ठीक है। वो क्या था कि फातिहा अगर कुरान खोलोगे नासारा तो अल्लाह की मदद आएगी, जराबा वरना मार पड़ेगी, सामया इसलिए सुन लो। तो ये हमने एक ऐसी एक स्टोरी सी या पोइम सी बनाई थी ताकि हमें इसे ये याद रहे। इसी तरीके से हमने कमजोर अफाल के सिलसिले में भी एक पोइम बनाई। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, वहाबा का मतलब उसने दिया, वादा का मतलब उसने वादा किया, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला उसने बल्कि कहा उसने कहा, ज्यादा उसने ज्यादा किया, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दुआ करना उसने दुआ की, हदा उसने हदायत दी। और यकसा रूफ के अफाल में हमने पढ़ा था, और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, जन्ना उसने गुमान रखा, जल्ला वो गुमराह हुआ या वो भटका। तो इस तरीके से हम याद करने के लिए ये पोएम ने रखी थी, ठीक हो गया। तो अभी आपको इन सब के जो मीनिंग है जो वो आपको आनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इस बात में हम जो कोर्स 1 आओ कुरान और नमाज समझे आसान तरीके से, और कोर्स 2 यानी ये कोर्स यानी कुरान के पहले 5 पाठ से हर स्टाइल पर आने वाले अफाल का अयादा कर रहे हैं, इसकी रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि हमने सबसे पहले फातिहा के पैटर्न पे आने वाले सारे अफाल जो थे उसकी हमने रिवीजन की थी। फिर पिछली क्लास में हमने नासारा के पैटर्न पे आने वाले अफाल की रिवीजन की थी, और आज भी हम नासारा के कुछ अफाल जो हमारे रह गए थे कुछ हम उसकी रिवीजन करेंगे, और कुछ हम जाराबा के पैटर्न पे आने वाले अफाल की रिवीजन करेंगे। तो नासारा के पैटर्न पे हम पढ़ रहे हैं, कुछ हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। नासारा यांसुरु उनसुर, नासिरुन मंसूरुन नसरुन, इसकी एग्जांपल थी इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह। अब उसके बाद है अगला फेल है हमारे पास कफरा यकफुरु उकफुर, काफिरुन कफूरुन कुफरुन। इसकी एग्जांपल हमने ली कुल या अय्युहल काफिरून। चलिए मिस साइमा आप अनम्यूट कीजिए, और आप जो है हमारे पास शाआरा के पैटर्न पे आने वाले फेल की आप इसको दोहराई कीजिए, साइमा बीबी। शाआरा, यशउर, खुशबुर, शायर, मशहूर, शुकुर, वहुम वहुम ला यशउरूना। अच्छा साइमा ये बताइए कि ये यश और रूना जो हमारे एग्जाम्पल में आया है तो ये कौन सा फेल आया है? ये मुदारा है। जी मुदारे है और जमा है, वेरी गुड माशाल्लाह बहुत अच्छा। ये आगे पढ़िए। सदाका, यस्दुकु, उज्दुक, सादिक, मस्दूक, सिद्क, इन कुंतुम सादिकीन। ये कौन सा आया है सादिकीन? कौन सा? ये जो आपने पढ़ा इन कुंतुम सादिकीन, ये जो सादिकीन है ये हमारे इसमें से इस टेबल में से कौन सा वर्ड है? आपको समझ आ रहा है? ये देखिए सादिकीन किसकी जमा है ये? मस्दूक, नहीं ये सादिक की जमा है, सादिक, ठीक है। सादिक जो है इसम फाइल है। सादिक, हाँ सादिक, तो सादिक की जमा क्या होगी? सादिकीन, ठीक है, सादिक की जमा है सादिक। सादिकीन। अब यहाँ स्वाद के ऊपर जो खड़ा जबर है ना, तो इसको स्वाद अलिफ सा जैसे ये सादिक लिखा ऐसे भी लिख सकते हैं, और खड़ा जबर के साथ भी लिख सकते हैं, इसलिए ये सादिकीन सादिक की जमा है, ठीक है। आगे है फासाका, उसने नाफरमानी की। चलिए इसको पढ़िए। फसका, यफसुकु, उफसुक, फासिक, फिस्क,
وما يضل به إلا الفاسقين. आपको ये समझ आ रहा है ये फासिकीन जो अभी आपने पढ़ा है ये कौन से स्टेबल में से कौन सा वर्ड है? फासिक. फासिक, वेरी गुड। इसको हम कहते हैं इस्म फाइल। ठीक है, फासिक की जमा है, फासिक. फासिक की जमा है फासिकीन। ठीक हो गया, ओके। चलिए आगे है फासिकीन. कातामा। कातामा का मतलब है उसने छुपाया। ठीक है, पढ़िए। कतमा, यक्तुम, उक्तुब, कातिम, मक्तूमुन, कितमान, वमा कुंतुम तक्तुमून. ना. तो वमा कुंतुम तक्तुमून, ये कौन सा फेल हो सकता है तक्तुमून? जी, कातिम. कौन सा हो सकता है? सारे का फेल हो गया। ये गुजारे हैं तक्तुमून, जैसे यक्तुमू, यक्तुमूना, तक्तुमू, अक्तुमू, जी. तक्तुमूना, ये वो वर्ड है तक्तुमूना। ठीक है, ये मुजारे का है, ये जमा है। चलिए आगे चलते हैं। मिस शुमाइला, अभी आप भी आपने ज्वाइन किया। अभी आपको भी मैं कॉल करती हूँ अभी। चलिए ये देखिए कि इसमें फसा का अस्मा की 3 चाबियां बताइए, ABCD में से क्या हो सकता है? जी, सी. चैट बॉक्स में लिखा करें आप, वेरी गुड। शुमाइला ने लिखा बी और आपने कहा सी, और बाकी देख लेते हैं क्या है हमारे पास। बी, ठीक है। फासिक, डैश और फिस्क, ये अस्मा है। ठीक है, अस्मा की 3 चाबियां। अभी नेक्स्ट है, तर्जमा कीजिए शाआरू। शाआरू का क्या तर्जमा होगा? ABCD में से बताइए। जी, मिस शुमाइला का आंसर सबसे पहले आया। ये मिस शुमाइला बिल्कुल सही, उन्होंने महसूस किया, शाआरू उन्होंने महसूस किया या शऊर, ठीक हो गया। आगे देखते हैं, तर्जमा कीजिए ला यशउरूना का क्या तर्जमा होगा? ला यशउरूना, ABCD में चैट बॉक्स में लिखिए। सब लोग कोशिश कीजिए, सब लोग जवाब देने की कोशिश करें, सब लोग समझे इसको। जी, मिस कैरी, मिस शुमाइला और बाकी लोग भी देखते हैं बाकी का क्या आंसर है। इसका जवाब है, जी बिल्कुल सही लिखा सबने। सब महसूस नहीं करते, ठीक है, बी आंसर ठीक है। चलिए जी, अच्छा ये हमारा, सबसे पहले हमने फातहा की रिवीजन की थी, और फ़अला, जअला, खदा, ज़हबा, क़तअ, ये 5 हमने इसकी सबसे पहले रिवीजन की थी। उसके बाद हमने नासारा के पैटर्न पे आने वाले जितने भी अल्फाज थे वो अभी हम रिवीजन कर रहे थे। कुछ हमने पिछली क्लास में की थी और कुछ हमने अभी की क्लास में की। इसमें से हमने क्या क्या पढ़ लिया? खलक़ा, अबदा, ज़करा, शकरा, दखला, हसदा, अकला, अमरा, तरका, अखज़ा, ख़लदा, रज़क़ा, सजदा, सकना, काफारा, शाआरा, सदाका, फसका, कतम। ये सब के अफ़ाल की हमने प्रैक्टिस कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। अब तकरीबन कुरान में 190 अफ़ाल ऐसे हैं जो कि 3800 मरतबा हैं, जो कि इसी पैटर्न पे आए, इस तरह के पैटर्न 190 अफ़ाल अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम देखते हैं ज़ाराबा के पैटर्न पे आने वाले अफ़ाल कौन से हैं। तो अभी हम ज़ाराबा के पैटर्न पे आने वाले अफ़ाल की प्रैक्टिस करें। ज़ाराबा, यदरिबु, इदरिब, ज़ारिब, मज़रूब, ज़र्ब।
इन अल्लाह ला यस्तहजी अन यदरिब मसला, ये इसकी एग्जाम्पल। तो आगे वाले हमारे पास है, अगला है फिल रजा। रजा यरजिउ, इरजी राजे डैश रुजू, फहुम ला यरजिऊन। चलिए, अच्छा बताइए मुझे, ये इसकी जो एग्जाम्पल है फहुम ला यरजिऊन, ये यरजिऊन कहाँ पर है हमारे पैटर्न में? जी मिस शुमाइला, मिस साइमा, मिस रुबाब, बाकी जो भी है आप लोग बताइए मुझे, ये कहाँ पर कौन से वाले इसमें इस्तेमाल हुआ है, एग्जाम्पल में कौन सा फेल इस्तेमाल हुआ है? ये तीन फेल है ना हमारे पास, रेड रेड वाले, रेड बॉक्सेस वाले, इन तीनों में से कौन सा यूज हुआ है? जी मिस बताइए। मिस साइमा, मिस शुमाइला, मिस रुबाब, मिस मनाहिल। ये यर्जिऊना क्या है? यर्जिऊ की जमा है यर्जिऊना, ठीक है। यर्जिऊ ये हमारे पास मुजारे है ना, ये देखिए ना आपके सामने ये लिखा हुआ है। तो आप लोग कोशिश किया कीजिए ना इसको पहचानने की, कि हमारे पास जब आप कुरान पाक पढ़ते हैं, जब आप कुरान पाक पढ़ेंगे, उसमें जो फेल होगा तो उसको आपको पहचानना है कि ये फेल कौन सा है, माजी है, मुजारे है, वाहिद है, जमा है, वो सारा आपको पहचानना है। तो अभी ये एग्जाम्पल जो है ये कुरान पाक से दी हुई है, तो यहाँ से आपने इसको पहचानना है कि ये कौन सा फेल है। चलिए, मिस शुमाइला आप पढ़ेंगी जालमा का टेबल, शॉर्ट टेबल दोहराइए। अनम्यूट कीजिए मिस शुमाइला। आप लोग शामिल हो ना, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर ही आपको समझ आएगा। सिर्फ क्लास अटेंड करना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसमें पार्टिसिपेट भी करना होता है, ठीक है। ज़लमा यज़लिमु इज़लिम ज़ालिम मज़लूम ज़ुल्म वतकून मिन ज़ालिमीन। इसमें इसम फाइल। सम फाइल, माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा मुझे बताइएगा जालमा का ये जो टेबल आपने पढ़ा है, ये कौन से बाब से है, कौन सा बाब है इसका, कौन सा बाब पढ़ रहे हैं? ज़रबा सारा बाब, वेरी गुड, सारा बाब। चलिए अगला है माला का। माला का ये भी पढ़िए मिस माला, ये भी आप ही पढ़ लीजिए, फिर अगले दो मिस किसी और को पढ़ाऊंगी। मालका यमलिकु इमलिक मालिक ममलूक मिल्क मालिकी यौमिद्दीन। वेरी गुड। तो ये कौन सा फेल इस्तेमाल हुआ है, मालिक यौमिद्दीन? फेल है ये, इसम फाइल। इसम फाइल है, मालिक यौमिद्दीन, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए मिस साइमा में भी अगला आप पढ़िएगी, आप पढ़े अगला, अनम्यूट कीजिए। कज़ाबा, कज़बा यकज़िबु इक्ज़िब काज़िब मकज़ूब कज़िब कानू यकज़िबून। यकज़िबूना ये कौन सा फेल इस्तेमाल हुआ है? ज़रबा सारा, सारा तो है, यानी इसमें से माजी की मुजारे फिर अमर या इसम कौन सा इस्तेमाल हुआ है इनमें से? कौन सा मुज़ारे पैटर्न है? मुजारे है। यकज़िबू की जमा है यकज़िबूना, ठीक है। हाँ, यकज़िबू, मुज़ारा बिल्कुल, मुजारा। अगला भी आप ही पढ़ लीजिए। यकज़िबु हाँ, अगला भी पढ़े। कदरा कदरा यकदिरु इक़दिर कादिर यक़दीर मक़दूर कदरा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। कौन सा फेल इस्तेमाल हुआ है इसमें? कदरा से कदीर कदीर, कदीर क्या है, क्या है इसमें फाइल है, क्या है इसम फाइल है या फेल है, क्या है ये? फेल फेल नहीं बेटा, ये कदीर जो है इसम फाइल है, ठीक है। जैसे कादिर है ना, कादिर की एक कदीर भी होता है, कदीर, ये कदीर, हाँ कदीर जो यहाँ पर अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, कदीर यहाँ हुआ है, ठीक है। ये इसम फाइल इस्तेमाल हुआ।
چلیے آج ہم نے زارابا کے پیٹرن پہ آنے والے کتنے فعل پڑھے؟ رجا، ظالما، مالکا، غضبا اور قدرا. یہ ہم نے 5 فعل جو ہم نے زارابا کے پیٹرن پہ آنے والے پڑھے. ٹھیک ہو گیا. چلیے ہم نے اس میں سے ہم نے 6 افعال کی مشق کیا. زارابا کے پیٹرن پہ 6 افعال کی ہم نے مشق کی جو کہ 636 بار آئے. قرآن میں تقریباً 115 افعال ایسے ہیں جو 1750 بار آئے ہیں اور یہ سب کے سب کس پر ہیں؟ زارابا کے اسٹائل پر ہیں. اس لیے اس اسٹائل کو اچھے سے یاد کریں اور ہوم ورک کرنا نہ بھولیں تاکہ پریکٹس کریں گے تو پھر آپ کو پتا ہوگا قرآن پاک میں سے آپ کی پہچان لیں گے. الحمدللہ. چلیے ابھی تھوڑی سی عربی بول چال کرتے ہیں. اوکے عربی بول چال. حل کفرتا. چلیے مجھے مس سائمہ آپ کوشچن کریں، مس شمائلہ آپ آنسر کریں. مس سائمہ کوشچن کریں گی اور مس شمائلہ آنسر کریں گی. مس سائمہ انمیوٹ کیجیے. حل کفرتا، ما کفرتو، حل کفرتم، ما کفرنا، حل تکفرو، لا اکفرو، حل تکفرون، لا نکفرو، لا تکفر، لا اکفرو، لا تکفرو. لا نکفرو. اچھا یہ بتائیے ذرا، دیکھیے شروع میں لکھا ہوا ماں کا فرتو، پھر نیچے لکھا لا اکفرو. یہ ماں اور لا میں کیا ڈفرینس ہے یہاں پر؟ نہیں ہوتا ہے اس مطلب نہیں. دونوں کا مطلب نہیں ہوتا ہے. تو شروع میں لکھا ہوا ہے ماں کفر تو، ٹھیک ہے، ماں کفر نہ، تو بھی ماں آیا، باقی میں لا آیا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا ذہن میں ماضی اور ماضی اور مضارع. ٹھیک ہو گیا. جو ماں اوپر یہ دو ہے وہ دونوں کیا ہے؟ ماضی کے ساتھ ہے. ماضی کے ساتھ ماں آتا ہے اور مضارع کے ساتھ اور امر کے ساتھ پھر لا آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ وہی ہے ماضی اور مضارع. چلیے آگے چلتے ہیں. میں کوشچن کروں گی مس شمائلہ آپ مجھے آنسر کیجیے. حل صدقتا، صدقتو، حل صدقتم، نعم صدقنا، حل تصدقوا، نعم نعم اصدق، حل تصدقون، نعم نصدق، اصدق، اصدق، اصدقوا. نصدق. گڈ. مس آپ بتا سکتے ہیں کہ حل صدقتا جو سب سے پہلے میں نے آپ کو پوچھا تھا، حل صدقتا اس کا کیا میننگ ہو؟ کیا آپ نے سچ بولا؟ ویری گڈ. کیا آپ نے سچ بولا. صدق. چلیے آگے ہے حل تشکرو. آنسر کریں مجھے. حل تشکرو، نعم اشکر، حل تشعرون، نعم نشکر. حل تشعرون کا کیا مطلب؟ تشعرون کیا ہوگا اس کے میننگ؟ کیا آپ سب شعور رکھتے ہیں؟ ہاں بالکل. کیا تم سب شعور رکھتے ہو؟ بالکل صحیح. نام نہ شروع، ہاں ہم سب شعور رکھتے ہیں. چلیے اب مجھے سائمہ جواب دیں گے. مس سائمہ حل فسقو، مس سائمہ انمیوٹ کیجیے. کوئی اور جواب دے دیں. مس شمائلہ آپ دے دیں. حل فسقو، نعم فسقو، حل یفسقون. نعم یفسقون. اس کا میننگ کیا ہو سکتا ہے؟ حل فسقو، حل فسقو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا اس نے نافرمانی کی؟ فسا کا مطلب ہوتا ہے فسا کا نافرمانی کرنا. الفاسا نافرمانی کی. نام فاسقو. اب یہاں پر ہم نام کی جگہ پر لا بھی لگا سکتے ہیں. لا فاسقو. ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس ہے کیا ہے؟ ماضی ہے. الفاسقو نام فاسقو یا لا ما فاسقو. ٹھیک ہے ما آئے گا. اگر حل یفسقون
क्या वो सब नाफरमानी करते हैं? तो यहाँ पर आ सकता है ला यफसुकून, नहीं वो सब नहीं नाफरमानी करते, यानी नाम की जगह पर ला आ सकता है और माजी में मा और मुजारे में ला। चलिए अब फिर हल जलम था, आंसर कीजिए। हल जलम था, क्या आंसर होगा इसका? हल जलम था, क्या तुमने जुल्म किया, क्या आंसर होगा इसका? मा ज़लम तू। मा जलम तु, वेरी। हल जलम तुम, मा ज़लम ना। हल तजलिमू, तजलिमू, ला अज़लिम। हल तजलिमूना, ला नज़लिमु। हल तजलिम, ला तजलिम, ला अज़लिमु। ला तजलिमू, ला नज़लिमु। वेरी गुड। चलिए आगे है हल कज़ब्ता, हल कज़ब्ता का आंसर कीजिए। हल कज़ब्ता, मा कज़ब्तु। हल कज़ब्तुम, मा कज़बना। हल तकज़िबू, ला अक़ज़िबु। हल तकज़िबूना, ला नक़ज़िबु। ला तकज़िब, ला अक़ज़िबु। ला तकज़िबू। ला नक़ज़िबु। गुड। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास मिस हवा भी आ गई, मिस हवा ने ज्वाइन किया। मिस हवा आप जो है अनम्यूट करें, मिस हवा आप क्वेश्चन करें और मैं आपको आंसर करूंगी। हल तर्जिउ इलल्लाहि। नाम अर्जिउ इलल्लाहि, हल तर्जिउना इलल्लाहि। नाम नर्जिउ इलल्लाहि। ओके, अब इसका तर्जुमा क्या होगा? हल तर्जिउ इलल्लाहि, क्या मतलब होगा इसका? तर्जिउ तरजीह देना। तर्जु राजा का मतलब होता है, राजा का टेबल से बना ना, राजा वो लौटा, ठीक है। तर्जु क्या वो लौटता है क्या वो अल्लाह? लौटा क्या हाँ। वो लौटा है अल्लाह की तरफ। हाँ हाँ वो हाँ, लौटा है अल्लाह की तरफ। सही बात। चलिए अभी क्वेश्चन आंसर आ गए, चलिए जी थोड़ा सा ये देख लेते हैं। राजा से अफाल की 3 चाबियां बताइए, ABCD में से बताइए। चलिए जल्दी से। मैम बी वाला। बी बना, रजा, यरजिउ, इरजी। क्योंकि अफाल की 3 चाबियां ना, अफाल की अलग होती हैं और इसम की अलग होती है। अब ये हमने देखना है कि अफाल की 3 चाबियां राजा, यरजिउ, इरजी, यानी कि माजी, मुजारे और अमर है। ठीक हो गया। चलिए हल तस्तूना, इसका आंसर बताइए। ABCD में से क्या होगा? चैट बॉक्स में लिखिए या ए अनम्यूट वाला। कर, सब लोग पार्टिसिपेट करें, सब लोग पार्टिसिपेट करें। मिस शुमाइला कह रही ए, मिस हवा कह रही है ए। ओके, बिल्कुल सही फरमाया आप लोगों ने। अच्छा, सब लोग जो है कोशिश करें और कि चैट चैट बॉक्स में लिखें, क्योंकि सबको मौका मिले। तो अगर आप ऐसे बता देंगे तो सबको पता चल जाएगा। चलिए अगला अगला करिए। हल नसरकुमुल्लाहु, इसका आंसर क्या होगा? और चैट बॉक्स में लिखिए ABCD में से क्या आंसर होगा। जी, के मिस शुमाइला कह रहे हैं कि क्या होगा? ठीक है, डी आंसर इसका सही, बिल्कुल सही लिखा आपने। नाम नसरा अल्लाहु। चलिए अगले चलते हैं, आगे वाले में क्या है? हल हुम राजिऊना इलल्लाहि, आंसर बताइए इसका ABCD में से क्या होगा?
हल हम राजिऊन, क्या वो सब लौटने वाले हैं अल्लाह की तरफ? क्या आंसर होगा ये? और नहीं, और भी कोई? सब लोग लिखें। डी। ओके, नाम नहनु राजिऊन। डी तो नहीं हो सकता, हम का आंसर हम के साथ होता है, ठीक है। हल हम राजिऊन, क्या वो लौटने वाले हैं अल्लाह की तरफ? नाम हम, हाँ वो लौटने वाले हैं। हम का आंसर हम के साथ, हुआ का हुआ के साथ, हम का हम के साथ, और बाकी फिर आपस में बातचीत शुरू होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा आज का सब कंप्लीट हुआ। और अब जो है हमारे पास ये वर्कबुक का पेज है, और वर्कबुक के पेज के ऊपर आप लोग देखें कि हमारे पास क्या है। यही पैटर्न जो अभी हम रिवाइज कर रहे थे। सबसे पहले देखिए नासारा, काफरा, ठीक है, ये मस्दर लिखे हुए हैं, तो मस्दर लिखे हुए हैं, तो आपको बाकी लिखना है, ठीक है। इस पे कोड लिखा हुआ है, मादा लिखा हुआ है, आपने बाकी इस वाले टेबल को फिल करना है। फिर माजी, फिर मुजारे, फिर अमर, फिर इसम फाइल, इसम मफूल, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले है हमारे पास नासारा मस्दर है, नसरुन, नसरुन मस्दर है, तो इसका फिर माजी क्या होगा? मिस हवा बताइए जरा, इस टेबल को आप कंप्लीट करेंगी? नासरा के टेबल से, नासरा का बाब है, और इसका मस्दर क्या है? नसरुन, तो क्या होगा इसका फिर माजी? मैम ये पूरा टेबल बनाओ ना, नसारा नसरू नसर, तो नहीं ये नहीं वाला ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने सिर्फ इसका शॉर्ट टेबल बनाना है, ठीक है। जैसे अभी हम शॉर्ट टेबल पढ़ रहे थे ना, यही सेम ऐसे आप शॉर्ट टेबल कैसे बनाएंगे आप? नसारा हम्म, यन यनसुरु, शाबाश। अमर क्या बनेगा? और औसुर उनसुर, 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 ठीक है। अब सफाई, नासिरुन सिरुन। मंसूरुन नसरुन। और तर्जमा क्या होगा? मस्दर का तर्जमा क्या होगा? मदद करना, नस्र, नस्र, ये जैसे हमने लिखा मस्दर का तर्जमा लिखना, तो हमारे पास ये मस्दर है ना, इसका तर्जमा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नस्र, मदद करना, काम का नाम, ठीक है। चलिए, अगला है काफरा। काफरा का मिश्माइला आप बनाए। काफरा यकफुरु उकफुर, काफिर, गुड, शाबाश। काफिर, मफूल क्या होगा? मकफूर, मकफूर, वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या इसका होगा कुफ तर्जमा? करना या नाफरमानी करना। नाफरमानी करना, या कुछ करना, या इनकार करना, ठीक है। ओके, अगला भी बना ले। अगला शाआरा का, शऊर का बनाए। इश्माइला, आप बना रही है ना इश्माइला? शाआरा, सआरा यसूरु, शारा उशकुर, शायर ये मशहूर, शायर, मशहूर। आगे शऊर, शऊर, इसका तर्जमा क्या होगा? अकल रखना, अकल वाला। शऊर रखना, उसने समझा या उसने शऊर रखा, ठीक है, शऊर रखना। ओके, अगला है हमारे पास सादाका। सादाका ये बनाइए, मिसाबा आप बनाएंगी। सदका यस्दुकु उसदुक सादिकुन मसदूकुन और सिद्कुन। क्या मतलब होगा इसका? तर्जमा क्या होगा? सदका उसने सच कहा। इसने सच सदका कहा, यानी इसका हमने तर्जमा लिखना मस्दर का, तो यहाँ मस्दर का तर्जमा होगा सच कहना, ठीक है, सच कहना। अगला है हमारे पास फिस्कुन, ठीक है। अगला मस्दर कौन सा है? फिस्कुन। ये वो है जो अभी हम रिवाइज करके आ रहे हैं, ठीक है। तो करिए जरा आप इस हवा आप करिए फिस्कुन का, फासा का, फासा का टेबल बनाए आप। फसका यफसुकु उफसुक
फासिकुन, मफसूकुन, फिस्कुन। अच्छा, इसका मफूल इसका नहीं होता जून ना, है। मफसूकुन नहीं होता, क्योंकि फिर का मतलब होता है नाफरमानी करना। तो नाफरमानी करने वाला तो वो खुद ही होता है, तो फिर इसका मफूल नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका ठीक है। मतलब होता है नाफरमानी करना। अगला है कितमानुन। कितमानुन का है इसका टेबल है कातमा। कत कातमा। कतमा यक्तुमु, उक्तुम, कातिमुन, मक्तूमुन, कितमुन, कितमानुन। कितमानुन, कितमानुन कितमानुन। कितमानुन का क्या मतलब होगा? छुपाना। ठीक है, इसका मतलब छुपाना। ये वही है जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। अगला है हमारे पास जाराबा का टेबल, ये तो बहुत आसान है। चलिए जाराबा का भी बनाइए। ज़रबा, ज़रबा, यस्रिबु, इसरिब, वारिबुन, मसरूबुन और ज़रबुन। ضرب। उसने मारा, मारना। मारना, इसका मतलब है मारना। ठीक है, तो ये हमारे पास जाराबा का टेबल। अब अगला आ गया राजा, रजू, रुजू करना। इसका बनाइए। राजा, यरजू, उर्जू, राज्युन, मरजू, इसका नहीं बनेगा ना, राज्युन और डैश रुजून। ओके, आजा। अच्छा, ये कौन सा बाब है? ये जरा बाय। तो जाराबा बाब के ऊपर जब हम बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा? इसका फेल अमर क्या बनेगा? राजा यरजीउ, और इसका उसका अमर राज, क्या बनेगा? इरजी। इसका इसम बनेगा। ओ सॉरी, इसम क्या? इर, इसका, हाँ, इसका क्या बनेगा? अमर क्या बनेगा? इर्जे। इरजी। ठीक है, इरजी का मतलब होता है इरजी, रुजू कर। ठीक है, फिर राजेउन, और इसका मफूल नहीं बनेगा तो फिर इसका रजूउन है। तो रजूउन का क्या मीनिंग होगा? अम, अम, रुजू करना। लौटना। रुजू करना, जैसे उर्दू में रुजू करना कहते हैं, रुजू, इसमें अरबी में भी इसका मतलब है रुजू करना। ठीक हो गया, Yes, ma'am. रुजू करना। या लोटा, लौटना हमने पढ़ा राजीन, लौटने वाला, तो लोटा भी सही है, वो लोटा, लौटने वाला लोटा। ठीक है, लौटना, लौटना। सही, लोटा तो बन जाता ना वो, माजी का बन जाता, तो इसका मतलब बनेगा रुजू, उनका मतलब बन जाएगा लौटाना। ठीक है, आया, लोटा। ओके, अगला है हमारे पास जालमा, जुल्मुन। चलिए बनाइए, और आगे मिशमाला, इसके बाद आप बनाएंगे Zalama, बाकी दो वाले। Yaslimu, Islim, Zalimun, Mazlumun, Zulmun। ऐसा होता है जुल्म करना। जुल्म करना, वेरी गुड। चलिए मिस शुमाइला, लास्ट पे दो आप बनाएंगी। बिल्कुल, माला का टेबल है। माला का यमलिकु, मिल्क, मालिक और डैश मिल्क। मालिक में डैश क्यों आएगा? मालिक। मालिक, ममलूक आएगा, ममलूक। ठीक है, मालिक का ममलूक आएगा, फिर मिल्क आएगा, वो उनके मालिक, मलकियत, इसका मतलब है मालिक होना, मलकियत। चलिए लास्ट वाला बना लीजिए। कदबा, यकदिबु, कादिब, मकदूब, किद। झूठ, नहीं, झूठ इसका, बोलना। हाँ झूठ बोलना, झूठ बोलना। इसका अमर क्या बनाया आपने? कदबा, यकदिबु, किसबु। इकजिब। क्या बनेगा? इकजिब। ये एक। हमारे पास जारा बाकी पैटर्न में ना, इकजिब। ठीक है, तो जो दासरा के पैटर्न में होता है उसका पेस्ट से बनता होता है, जैसे हमने बनाया था उनसुर। ठीक है, तो ये जारा बाकी इकजिब, जैसे इदरिब, इकजिब, तो इस तरह बनेगा, उसने झूठ बोला। चलो ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास कंप्लीट हुई। और अल्लाह से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।